संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम 19वीं शताब्दी में कैसे कार्यपालिका का विस्तार और कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव की शुरुआत हुई। वस्तुतः 1933 में ही जब विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले आए तो एक नाम मात्र की शुरुआत, एक सिंबॉलिक शुरुआत हो गई, क्योंकि जब गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के साथ बैठते थे तो कार्यपालक कार्य करते थे, और जब विधि सदस्य भी उसमें शामिल होता था तो विधायी कार्य करते थे। Thus, the beginning of separation of legislature from executive in nominal form, in primitive form, in symbolic form begin in 1833 when Lord Macaulay came India as law member in Governor General Executive. When Governor General said along with his 3 executive members, he and his members perform executive function, but when in this group Lord Macaulay as law member joined, they perform legislative function. With the passing of time, the additional member increased, and in 1853 and in 1858, the number of additional members increased 6, 10 and later on onwards. And in up to 1861, we see a separation of legislature from executive, that is, executive members plus Governor General means executive, Governor General, executive members and additional members means legislature. All of these were Britishers. But after that, Indians were also admitted as additional members. In 1861, departmental system started during Canning, and his finance member for the first time in Indian history produced budget. 1861 आते आते अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ कार्यपालक हुआ करता था, और इनके अतिरिक्त जब अतिरिक्त मेंबर इसमें शामिल होते थे तो विधायिका का कार्य करता था। 1861 में कार्यकारिणी में विभागीय व्यवस्था शुरू हुई, और पहली बार लॉर्ड कैनिंग के विधि सदस्य विल्सन ने पहली बार बजट प्रस्तुत किया, और अब भारतीय सदस्यों को भी अतिरिक्त सदस्य के रूप में शामिल किया जाने लगा। आफ्टर दैट लेजिस्लेचर का रियल फॉर्म कब बनता है? गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव की संख्या बढ़ते 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 9 हो गई 1909 तक। गवर्नर जनरल प्लस 8 मेंबर्स हो गए अप टू
1909 with different departments, executive members included, and in 1907, for the first time in Governor General Executive, one Indian was appointed. And by the Charter Act of 1909, it got legislative and constitutional form. Dr. Satyendra Prasanna Sinha was the first executive member, Indian executive member in Governor General Council. But real form, not totally real in modern look, but with representations of more Indians, the legislature appeared in 1892. By the Charter Act of 1892, the number of additional members much increased, and this Charter Act was called Indian Council Act. It was called Indian Council Act, that is the expansion of council. और इस प्रकार से 1892 आते आते विधायिका का प्रारूप बना। अब विधायिका में यद्यपि प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या हुई। यद्यपि अभी भी ऑफिशियल या सरकारी सदस्यों की संख्या अतिरिक्त सदस्यों के रूप में भी ज्यादा रही। इस प्रकार 19वीं शताब्दी का अंत होते होते देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव स्पष्ट हो गया। न्यायपालिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, above district court there were high courts in 3 metropolitan provinces, firstly Bombay, Calcutta and Madras, later on in Lahore and Allahabad. Up to end of 19th century there were 5 high courts in India, and in legislative terms, Indian Council Act expanded the number of additional members, not in the form of imperial council, which became named in the Act of 1909, but in provincial councils too, especially in provincial councils. इस प्रकार से प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर विधायिका का रूप बना, और केंद्रीय में भी गवर्नर जनरल, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल हो चुका था, वो 1935 से ही, वह उसकी कार्यकारिणी में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा के विधायिका का स्वरूप बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ। कानून का शासन पहले लागू हो चुका था। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जैसी कोडिफाइड लॉ आ चुके थे। उनके चार्टर एक्ट द्वारा भारत का शासन चलने लगा था। दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, दो इट वाज मेड बाय ब्रिटिशर्स। गवर्नर जनरल की काउंसिल में और गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव में एवरीवेयर देयर वर डिपार्टमेंटल सिस्टम, बजट सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन में, इंपीरियल शासन में, कॉलोनियल शासन में हमारा संवैधानिक विकास समय समय बढ़ता रहा, और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण करते हुए इसे और डेमोक्रेटिक और भारतीय प्रतिनिधित्व की बात करने लगा। भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात के लिए संघर्ष होने लगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, और ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक शासन के तहत ही डेमोक्रेटिक शासन की तरफ धीरे धीरे भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए बढ़ती गई, और 1900 तक ये चीज़ें स्थापित हो गई।
नेक्स्ट वीडियो में हम 1900 बाद के 1909 के चार्टर एक्ट और 1919 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। थैंक यू।